Pause. Let me just get back to this. Let me start with the evacuation question. I think you asked on that one. Look, as you know, we have been prioritizing the evacuation of our of our people there, as well as some Afghans who we could bring out. Currently, of course, the Kabul airport is not operational, so I don't have any an update on when we will be able to do more flights. I think we will be able to revisit this issue once we have Kabul airport operational. Once the airport operations resume there, so I think we'll have to wait for that. Meanwhile, of course, our special Afghanistan cell continues to operate, as in touch with whoever is in Kabul and in Afghanistan. So that's what I would say about the evacuation part. Taliban government formation invite, I think एक सवाल था, Taliban सरकार बन रही है, उसके invite. दूसरा, I think the question about is it a representative government? I have actually no update on either issue. We're not aware of the invite. I've seen media reports on the government formation, but we don't have any update on anything on the invitation. And I don't have any details I can share with you regarding the nature of what government could form in Afghanistan. Afghanistan, people who have returned from Afghanistan, no. I mean, we were focusing, of course, to bring people out of Afghanistan. I haven't heard anything about people. Any case of flight mechanisms don't work. I mean, I presume you mean people who want to return to Afghanistan, or are you talking about deportation? कि जो वापस जाना चाहते हैं. अब अभी के स्थिति में तो कोई ऐसी फ्लाइट भी नहीं चल रही है, तो हमारे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है. कुछ जनरली जाना चाहते हैं, बट वो अलग चीज़ है. नहीं, जो क्या करें जब तक काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, अभी इस पे तो आई थिंक कोई अपडेट नहीं हो पाएगी. और वीज़ा के बारे में आपने पूछा, देखिए इस पे ये ऐसा एक मुद्दा है जिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा. अभी के लिए तो जो ई वीज़ा सिस्टम है उसमें 6 महीने वीज़े दिए जा रहे हैं, और जो यहाँ पे हैं कोविड के होते हुए कुछ लोगों के वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गए थे. पर स्पेसिफिक इश्यूज पे अभी डिस्कशंस हैं, इंटरनल डिस्कशंस चल रही हैं. जैसे उन्होंने कभी तो मतलब फ्लाइट वगैरह नहीं हो रही हैं. और एक था हमारे दोहा मीटिंग के बारे में, if there are any other plan. Look, all I know, can tell you is there was a meeting, and that meeting we have shared with you details of what the meeting is. I have no update on any further. I would not like to speculate about the future. Okay, let me have another round of questions. Let me start with here. And you, one second. We'll start with gentleman there. Sorry, I know most of you, but I don't want to call you out by name. Better you introduce yourselves. Hi, Sachin from Times of India. Given that Taliban itself, according to MEA, had asked for a meeting on Tuesday with the Indian ambassador, does it not strike as odd that until now there's not even a word from the Taliban on the meeting? There's no confirmation, no announcement, even though they have confirmed meeting with several other ambassadors in the last 2 days. And is it also true that the Taliban didn't want a photo of the meeting? Did they insist on not releasing or even taking a photo of the pic? Thanks. Please, here. यहाँ पे. First row यहाँ पे. उमाशंकर एनडीटीवी से. दोहा में तालिबान के नेता के अनुरोध पे हमारे एम्बेसडर ने वहाँ पे मुलाकात की उनसे. एक औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है. मेरा सवाल ये है कि क्या भारत के पास कोई रोड मैप है कि आगे किस तरह से बात करनी है, या जब तालिबान अप्रोच करेगा तब ही हम बात करेंगे? हमारे पास अपना कोई रोड मैप है. और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या हक्कानी नेटवर्क के जो नेता हैं उनकी तरफ से कल एक बयान आया है कि वो भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो क्या हक्कानी नेटवर्क पे भी उतना ही जुड़ा कैसे रहा सवाल? बट मैं ट्राई करूँ. हाँ, बातचीत से जुड़ा हुआ सवाल. अच्छा, ठीक है. और कौन थे इस साइड से? मैं संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 से. भारत में इस मुलाकात के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं मानते हैं, और ये जो मुलाकात हुई थी, क्या ये मुलाकातों की श्रृंखला की एक कड़ी है या फिर ये पहली मुलाकात है? Okay, who had a related question, please? Hi, Smita Sharma. Just to follow up on the question, because for India, for the longest, there have been red lines that there is no distinction between good and bad terror, and the Taliban has been a terror group. So where does India's official stand vis-a-vis the Taliban actually stand today
Does engaging also essentially mean that we are a step closer towards recognizing them? Could you repeat? I thought there were two different questions. Did you say about terror or recognition? They're two different issues, right? Two different. So officials you're asking stand two on questions. Taliban as a terror group and May I request everyone engaging to stick with to them. one question? The law. Anyway, Is it but a I'll try step to closer answer. to recognizing Okay, them? fair enough. I'll try to answer that. Okay. Maybe this side. You. कादम्बिनी शर्मा फ्रॉम एनडीटीवी इंडिया। जो सवाल यहाँ पर पूछा गया उसी से जुड़ा हुआ है। ये जो मुलाकात हुई है दोहा में भारत और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, तो सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, या कोई टाइम पीरियड दिया गया है दैट विल गेट बैक टू यू अबाउट जो भी इंडियंस वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं? Let me try to answer a few of this, and I'll try to see some of the questions have already been answered, but let me just try. पूछा गया था कि अफगान ये कोई श्रृंखला है, is there more meetings? I just answered. I have no update to share on that. I don't want to speculate. Photo was not put. I mean, no. Is it not odd they haven't said? That's up to them. No photo. I think it just didn't happen. It's just a meeting. It wasn't really that kind of an event where photos are taken, I presume. I mean, there's nothing, I don't think there's any thought behind it. We don't have a photo of it. I think neither side took a photo. Regarding अभी की कोई रोड मैप है, औपचारिक मीटिंग और रोड मैप अभी पूछा था आपने उसमें। देखिए, येस और नो सवाल नहीं है ये। हमारे पास बिल्कुल, हम ऐसे बिना सोचे तो कुछ किया नहीं होगा हमने। नहीं, मैं लंबा जवाब येस और नो भी नहीं देना चाहता हूँ मैं। आपने दूसरा पूछा टेररिज्म के बारे में, उसमें काफ़ी बाकी सवाल भी आए हैं। देखिए, लेट मी जस्ट से हमारा जो मेन कंसर्न है, वन ऑफ द प्राइमरी इमीडिएट कंसर्न is that Afghan soil should not be used for terrorist, anti-Indian activities or terrorism against India. I think you saw that in our press release. हमने इस बारे में काफ़ी कह रखा है। ये हमारा एक मेन मुद्दा है, और इस पे ही मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा फोकस यही है। तो मैं इस स्पेसिफिक इश्यूज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारी रोड मैप के बारे में देखते हैं कैसे आगे क्या बढ़ता है। इसमें इसी बात में आई थिंक सम पीपल आस्क्ड अबाउट इज इट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द, दैट्स नॉट द फोकस। द फोकस, लेट मी रीट्रेट, is that Afghan soil should not be used for terrorist activities of any kind, of anti-Indian activities, and we will try to focus on that element. There was a question about recognition or something like that. Let's just treat the Doha meeting for what it is. It is just a meeting, and I think these are still very early days, and I don't have further on that. And is there a time frame for assurance? Look, we use that opportunity to convey our concerns, whether it is on getting people out or on the issue of terror and anti-Indian activities. We received a positive response. Of course, as I mentioned earlier in some of the questions, a lot of this evacuation or repatriation of people or movement of people will depend on how we open the airport, to answer some of these. काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, पहले है हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट इन अफगानिस्तान, कितने रह चुके हैं। देखिए, डिफिकल्ट टू शेयर अ स्पेसिफिक नंबर, मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था, पर्टिकुलरली गिवन द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। जैसे मैंने पहले कहा था, वी थिंक द वास्ट मेजॉरिटी इंडियंस जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहाँ से। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी है नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है। कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ अब हो सकता है और निकल गए हों। हमारी जो अफगानिस्तान स्पेशल सेल है उनसे कांटेक्ट में है, पर लेट मी एम्फसाइज, वास्ट मेजॉरिटी निकल गए हैं, बहुत कम लोग बाकी होंगे इंडियंस। हैं कुछ पक्का, क्योंकि हम वी आर इन टच विद देम। एंड जैसे मैंने कहा, निकालने की बात पूछे तो क्या कर सकते हैं जब तक हमारे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, हमें अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक काबुल ऑपरेशनल हो जाए, फिर हम देखते हैं किस तरह से वो निकल आ पाते हैं। जैसे मैंने कहा था, दोहा मीटिंग में हमने इस बात पे हमारी जो कंसर्न है ये हमने उसको कन्वे तो कर दिया है। सो डेटा वाले, अच्छा हाँ, और दूसरा ये हिना खान वाला केस पे मैं नहीं जानता हूँ, मुझे अवगत नहीं हूँ कि इसमें कोई लिखा है या कांटेक्ट किया है। ये क्या अफगानिस्तान पे है, पता नहीं, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। अफगान, सॉरी,
नहीं, वीज़ा की बात कर रहा हूँ। वीज़ा के बारे में देखिए, वीज़ा के डिटेल्स आपको मतलब ई वीज़ा वाला सिस्टम करीब 16 तारीख की शाम से ओपन हुआ था, पर इसका जो डेटाबेस है वो हमारे गृह मंत्रालय के पास है, MEA के पास है, तो मेरे पास इस पर डेटा नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि मैं कुछ इसमें कहूँ। I think I got a call. How many Afghan visas were the same question? Same. We don't have an exact number, at least with the ministry. This is the database that's the application goes directly into the Ministry of Home Affairs. I know we've received a large number of them, I'm sure, and we've issued some. We had a query regarding refugee policy e-visa. देखिए अगेन रिफ्यूजी पॉलिसी वगैरह ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये वीज़ा 6 महीने के लिए ई वीज़ा इशू किया जा रहा है, उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। उनका स्टेटस क्या होगा ये आपको होम मिनिस्ट्री पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वीज़ा देते हैं उसमें। आई डोंट नो उसमें रिफ्यूजी स्टेटस होता है या नहीं होता है। सॉरी, आपने नहीं पूछा था, आई थिंक आपने पूछा था, राइट। आपने पूछा था कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हमसे तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन हमारे खिलाफ तो नहीं है, तो इसमें पता नहीं हम क्या मदद कर सकते हैं। वो कर रहे हैं प्रदर्शन, उनको आई थिंक उनको रिफ्यूजी स्टेटस चाहिए बाकी कंट्रीज़ में। अब बाकी ये तो हमारे टॉपिक नहीं है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन था आपका, क्या था क्वेश्चन? हाँ, जान माल की, आप सुरक्षा की बात कर रहे थे। देखिए अब वो दोहा मीटिंग में जो हुआ हमें आपको बता दिया, इसमें उससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं कुछ शेयर करने के लिए। हम चाहेंगे ऑफ कोर्स कि अफगानिस्तान में उनकी शांति रहे, पीस आए, वहाँ पे जान और माल का सुरक्षित रहे, ये तो हम हमेशा से चाहते हैं। पर वो दूसरे देश में है और वहाँ पे अभी काफ़ी बदलाव चल रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। वाई अ मीटिंग वॉज आस्क्ड, वाई आस्क अस, I would refer you to the other interlocutor in this. I presume they would like to reach out to all countries who have an interest and are relevant in this, I presume. But I'm speculating and guessing, and which I do not wish to do. What we had to say about the meeting, I think has been amply clear in our press release that we have put out. And as I mentioned, I don't have any further. Somebody asked about further meetings. I think I don't have. That was it. No, have I missed any other thing? Okay. Moving on from Afghanistan, आपने पाकिस्तान पे पूछा था, प्लीज। मेरा सवाल ये था कि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी तस्वीरें आई, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई, अल्पसंख्यकों को टॉर्चर किया गया। इसको लेकर भारत का क्या रुख है, क्या विरोध जताया है? दूसरा, पाकिस्तान से ही जुड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान से ही जुड़ा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर जो मैसेज किया है, ट्वीट किया है, उनको पाकिस्तानी बताते हुए कहा है कि देश में शोक रहेगा, एक दिन झंडा झुका रहेगा। इस बयान को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान को भारत सरकार किस तरह से? देखिए आपने दो बड़े डिफरेंट क्वेश्चन पूछे। चलिए, देखिए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हालात में उन पे अटैक्स पे हमने काफ़ी स्टेटमेंट्स कर रखा है। मैं आज स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। हमने काफ़ी बार ये इशू रेज़ किया है उनके साथ, आपको भी बताया है हमारे इस माध्यम इसी प्रेसर के माध्यम से या अदरवाइज हमारे स्टेटमेंट भी आए हैं। हमारा पोजीशन इस पर काफ़ी क्लियर है, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दैट। और इमरान खान ने जताया है उसमें मेरा इमीडिएट कमेंट नहीं है, आई सपोज उनका स्टेटमेंट है। आई डोंट हैव एन इमीडिएट कमेंट ऑन दिस। उन्होंने उनको निशान पाकिस्तान या कुछ भी दे रखा था, उनकी मर्जी।